1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. पहला थिस्सलुनियों 5:18 कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। To some people, complaining about something comes easier than giving thanks. कुछ लोगों के लिए किसी बात के बारे में शिकायत करना धन्यवाद देने से आसान होता है। They are not satisfied with what they buy. वो जो कुछ भी खरीदते हैं उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। They go to market and buy expensive and precious things. वे बाजार जाते हैं और महंगी और कीमती चीजों को खरीदते हैं, But when they reach home, लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं instead of appreciating its value and its utility, तो उसके मूल्य और उसकी उपयोगिता की सराहना करने के बजाय they complain, saying, "Is it worth this amount? वे कहते हैं, क्या ये इस पैसे के लायक है? I don't know why I bought this." मुझे नहीं पता कि मैंने इसे क्यों खरीदा। There is yet another category of people ऐसे लोगों की एक और श्रेणी है who find solace in complaining about their health always. जो अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा शिकायत करने के लिए सांत्वना पाते हैं। Doctors, in order to satisfy such people, employ a technique. डॉक्टर्स ऐसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। They give some vitamin tablets or sometimes even distilled water to psychologically keep such patients satisfied. वे ऐसे रोगियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से संतुष्ट रखने के लिए कुछ विटामिन की गोलियां या कभी-कभी आसूत जल भी देते हैं। One doctor said like this, एक डॉक्टर ने कहा, "I have got some patients who complain of many symptoms. मुझे कुछ रोगी मिले जो कई लक्षणों की शिकायत करते हैं। They complain of pains here, aches there. वे यहाँ दर्द की शिकायत करते हैं, दर्द वहाँ होता है। Some say, I just feel no good all over. कुछ कहते हैं, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है। When I examine, I find nothing wrong with them." जब मैं जांच करता हूँ, मुझे उनके साथ कुछ भी गलत नहीं लगता है। In my opinion, it is all imaginary. मेरे राह में ये सब काल्पनिक है। I read recently a report about the thankful attitude of an old woman. मैंने हाल ही में एक बूढ़ी औरत के आभारी रवैये के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ा। She was financially broke and was physically very weak. वो दरिद्र थी और बहुत कमजोर थी। When asked, "How is your health?" जब पूछा गया, आपकी तबीयत कैसी है, she quickly answered, "Oh, I have so much to be thankful for." उसने जल्दी से उत्तर दिया, ओ मेरे पास धन्यवादित होने के लिए बहुत कुछ है। It is true that I have only 2 teeth left, ये सच है कि मेरे केवल 2 दांत बचे हैं, but thank God they are opposite to each other. लेकिन परमेश्वर का शुक्र है वे एक दूसरे के विपरीत है। David remained conscious of all the blessings he had received from the Lord's hand. दाऊद को उन सभी आशीषों के बारे में पता था जो उसे प्रभु के हाथ से मिली थी। In Psalm 103, भजन संहिता 103 में he admonishes his own soul to remember all the blessings. वे अपनी आत्मा को सभी आशीर्वादों को याद करने के लिए कहता है And thank the Lord for all of them, और उन सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है for the forgiveness and for the salvation so freely received from the Lord. क्षमा के लिए और मोक्ष के लिए जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया, For the desires of the heart granted by him, उसके द्वारा दी गए हृदय की इच्छाओं के लिए, for the renewal of health even at old age, बुढ़ापे में भी स्वस्थ की नवीकरण के लिए, for the compassion and the love received from the Lord. प्रभु से प्राप्त करुणा और प्रेम के लिए। Probably we may add many more to this list.
शायद हम सूची में कुछ और जोड़ सकते हैं। Dear friends, today let us put away the habit of complaining प्रिय दोस्तों, आज आइए हम शिकायत करने की आदत को दूर करें and develop the habit of giving thanks to the Lord. और प्रभु को धन्यवाद देने की आदत विकसित करें। Let us count our blessings, name them one by one, आइए हम अपने आशीर्वादों की गिनती करें, उन्हें एक एक करके नाम दें। and when we get surprised about the quantum of them, और जब हम उनकी मात्रा से आश्चर्यचकित हो जाए, let our mouths shout praises to our Heavenly Father. तो हमारे मुंह खोलकर बोले स्वर्गीय पिता की प्रशंसा करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I am sorry for my thankless behavior. मुझे अपने आभारी नहीं होने की व्यवहार से खेद है। I often gripe and complain. मैं अक्सर दुखी और शिकायत करता हूँ। I often covet what others have and even complain that you have shown partiality to them. मैं अक्सर दूसरों के पास जो है वो देकर ईर्ष्या करता हूँ और यहाँ तक कि शिकायत करता हूँ कि आपने उनके साथ पक्षपात किया है। Please forgive me and help me to remain content and thankful to you. मुझे माफ कर दो और आपके लिए धन्यवाद होने और संतुष्ट रहने के लिए मेरी मदद करो। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ।